لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی بک فیئر جاری ہے۔ یہ کتاب میلہ عموماً 5 روز کا ہوتا ہے۔ آج ہفتے کے روز اس کا چوتھا دن تھا، کل آخری دن ہوگا۔ وہاں پہ ہم نے اسٹال والوں سے، وزٹر سے، خریداروں سے اور اپنے دوستوں سے گفتگو کی، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کتاب میلے میں شرکت کے لیے کراچی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ایک صاحب نیو یارک سے آئے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہر سال صرف اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ لوگوں میں وہاں پہ ایک اچھا خاصا رجحان نظر آیا خریداری کا۔ کار ہولڈر کی طرف سے مختلف آراء کا اظہار کیا گیا۔ شعیب مرزا صاحب وہاں ہمارے جانے سے پہلے موجود تھے۔ آصف علی بھلی صاحب سے ہماری سب سے پہلے گفتگو ہوئی۔ شعیب مرزا ہمارے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ موجود ہوئے تھے۔ باقی ساری سرگرمیاں ہم نے ان کے ساتھ ملاحظہ کی۔ شعیب مرزا صاحب سامنے سے آئے اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی آصف علی بھلی صاحب کے ساتھ۔ عوان صاحب ہمارے لیے تو اس کی حیثیت ایک آکسیجن کی ہے، ایک نسیم صبح کا تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس جیسی ہے۔ اور ہم تو پورا سال تلاش کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اس طرح کے میلے لگیں۔ اور میں اس تاثر کو بھی نفی کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اب کتابوں سے لوگ بہت دور چلے گئے ہیں، انٹرنیٹ نے اس کا بڑا منفی اثر ڈالا ہے۔ لیکن میں اب بھی یہ اس پر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ورتھ ریڈنگ کتابیں ہیں، جو کتابیں پڑھی جانے کے قابل ہیں، ان کو لوگ خریدنے کے لیے جوک تک جوک آتے ہیں اور اتنی تعداد میں خریدتے ہیں۔ لوگوں کا رش تو دیکھیں۔ اور میں اس سے بڑا ایک خوش ہوا ہوں کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے، اس کی عملی شکل جب ہم نے دیکھی ہے تو وہ اس کی نفی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم کتاب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتاب سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور کتاب سے بہترین کوئی دوست بھی نہیں ہے رہنمائی کے لیے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اچھا شہری بننے کے لیے، اپنے دل و دماغ کی تہذیب کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم ہی ہے۔ ملک اکبر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ دینی دوسرے مسائل اور یہ جو نظام چل رہا ہے ہمارا ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ بہت اچھی نمائش ہے۔ یہاں پہ ساری پبلک پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ آصف علی صاحب کے ساتھ آیا ہوں، انشاءاللہ بہت زیادہ خریدیں گے، انشاءاللہ بکس کافی خریدنی ہے، کافی جی بہت زیادہ دینی دوسری تیسری سوشل ساری بکس خریدیں گے۔ تو کہاں سے آپ آئے ہیں؟ سیالکوٹ سے۔ بہت شکریہ۔ سیالکوٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ چلو ایکٹیویٹی ایریا ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ مائیں جو ہے وہ ریئیکشن کم کر دیں تو
तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो मोबाइल का यूज़ कम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है लाइब्रेरियां हैं, बस बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि लाइब्रेरी में किताबें हैं, इजराइल नहीं है। तो उन्हें लगता है कि लाइब्रेरी जाते साथ ही कोई शायद मौत वाक़या हो जाएगी, तो इसलिए नहीं जाते। तो तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी हवाले से, किताबों को जोड़ने के साथ तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और मुझे लगता है कि जिस कौम की सोच को मारना हो, आइडियोलॉजी को मारना हो या पूरी कौम को ही मारना हो, तो उनके हीरोज़ को आप मार दें सिंपली, तो आपका ये काम पूरा हो जाता है। तो बदकिस्मती से लिखने वाले लोग कभी हमारे हीरो उस तरह से बन नहीं पाए, शायद तालीमी इदारों ने भी उस तरह से उनको साथ नहीं जोड़ा। तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े लिखारी हैं जो मरने के भी बहुत काफ़ी साल हो गए हैं जब से ये बुक फेयर यहाँ पे आगाज़ हुआ है, मैं रेगुलर आ रहा हूँ और ये अच्छा है। तकरीबन कितने साल से आप आ रहे हैं? 4-5 साल तो अच्छा। कहीं नहीं है, उससे पहले से फिर जहाँ जहाँ शायद मिर्जा साहब कितने अरसे से ये बुक स्टॉल लग रहा है यहाँ पे, ये बुक फेयर लग रहा है? 13 साल हो गए, 12-13 साल से। 12-13 साल। आप हमेशा लगाते हैं, इस दफ़ा आपका स्टॉल नज़र नहीं आया? इस मरतबा असल में इनके रेट बड़े ज़्यादा हो गए हैं अच्छा जी। और अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन भी नहीं थी कि हम समझते हैं कि हमारा वो स्टॉल की बुकिंग के पैसे पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमने अच्छा ठीक। जी बदर सही साहब। जी सर, ये अच्छा है। और इसमें सबसे देखिए, हमें एक फ़ैसला तो कर लेना है, हमने मुल्क को दहशतगर्दी की तरफ ले जाना है या कलम किताब की तरफ। दहशतगर्दी का मुकाबला हम इसी से कर सकते थे, जो ये सारा मेला सजा हुआ है और मुख्तलिफ जगह पे बुक फेयर्स लगते हैं, किताब मेले लगते हैं, किताबों की मुख्तलिफ मार्केट्स मौजूद हैं, इतवार बाज़ार, सस्ता किताब बाज़ार, उर्दू बाज़ार। तो हम ये तो तय है कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला कलम से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं। सोच बदल के कर सकते हैं और ये बेसिकली थिंकिंग की लड़ाई है। सोच यहाँ बुक फेयर पे हमारे साथ हैं राबिया रूबा साहिबा, इनसे बात करते हैं कि इनको बुक फेयर और यहाँ की सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ की कैसी लगी। ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये ऐसा है कि जैसे कहा जा रहा था 2022 में 2 बुक फेयर हुए, कोई कामयाब नहीं हुआ, लेकिन चूँकि लाहौर का मिजाज है कि वो वीकेंड्स पे अपनी इवेंट्स को इंजॉय करते हैं, तो आज बुक फेयर ये बता रहा है कि जिस तरह भरपूर लोग हैं कि बुक फेयर का कामयाब हो चुका है और कल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आएंगे कि लोग किताबें खरीद भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। सर, हर कोई कह रहा है कि किताब में जो लोगों की दिलचस्पी है वो ख़त्म होती जा रही है, वो बात थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है। ऐसा है नहीं एक्चुअली। एकेडमिक्स बुक्स तो बड़ी तादाद से बिक रही हैं, टेक्स्ट बुक्स भी बिक रही हैं। अब आप आ जाते हैं जनरल बुक्स या पॉपुलर रीडिंग्स की तरफ। जी वो कम हुई है, लेकिन क्या रीडर का कसूर है या राइटर का या पब्लिशर्स का, ये डिटरमिन करना है। क्या राइटर वो कंटेंट लिख रहा है, क्या वो नीड को एड्रेस कर रहे हैं। आप बुक फेयर में देखें, वो कितनी नई चीज़ें मिलती हैं। क्या फ़लसफ़े पे कुछ नया आया, क्या साइंस पे कुछ नया आया, अफसाने में क्या नावल कोई नया लिखा गया, ऐसा नहीं है। आप जब सब स्टॉल्स का विजिट कर लें, आपको ज़्यादातर चीज़ें वो पुरानी ही मिल रही हैं, ये नया कुछ भी नहीं है। अगर नया है तो फिर किताब जो नहीं बिक रही, पब्लिशर भी उसे सेल करने की टेक्निक से आगाह नहीं है। आज की दुनिया चेंज हो गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, उसकी नई मार्केटिंग स्किल्स चाहिए पब्लिशर्स को भी कि वो। तो आपके स्टॉल पर कौन सी ज़्यादा किताबें यहाँ पे मौजूद हैं और बिक रही हैं? हमारे स्टॉल पे जो ज़्यादातर किताबें हैं वो तकरीबन हर मौजूआत पे किताब हमने 1-2 पब्लिश की हुई हैं। हम बड़े सिलेक्टिव हैं मौजूआत के इंतखाब में, कंटेंट के इंतखाब में, क्योंकि हम एक जामिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप ज़रा तारफ़ थोड़ा करवा दीजिए। जी, मैं अहमद सोहेल हूँ और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ UMT प्रेस का, जो कि पब्लिशिंग हाउस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, हमारा बच्चों का किताब घर है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अंजुम है और हम किताबें सेल कर रहे हैं। बच्चों की काफ़ी सारी हमारे पास जो है किताबें हैं, बड़ों के लिए भी हैं, इस्लामी, तारीख़ी, 40% रियायत दे रहे हैं। ये हमारा फैक्ट पब्लिशर है, टेम्पल रोड पे हमारा ऑफिस है। तो ये हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, 20 से 40% तक आप आएँ और इस डिस्काउंट को अवेल करें। और ये 1 मार्च से 5 मार्च तक है। आज इसका सेकंड लास्ट डे है, तो आप लोग आएँ और आके इस ऑफ़र को अवेल करें। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम है अदील रहमत। अदील रहमत। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद दानिश है। अभी भाई ने कहा कि लाहौर एक्सपो में बात करनी है, तो फिर इजाज़त है सच बात करने की? हाँ जी, क्यों नहीं जी। देखें, बात यह है कि हमें दुख भी है, लेकिन कहना तो पड़ता है, हमारे भाई है लाहौर वाले।
कराची में जब लाहौर का पब्लिशर आता है तो वो 4 दिन में 50 लाख रुपए कमा के आता है। कराची हब है पढ़ने वालों का। कराची में आपका कारी मौजूद है। किताब यहाँ प्रिंट होती है, इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा किताब प्रिंट होती है, जी जी। लेकिन पढ़ने वाले वहाँ मौजूद हैं, पढ़ने वाला कराची में मौजूद है। तो हमने 3 दिन में बड़ा फ़र्क महसूस किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि यहाँ रौनक वीकेंड है ना आज, कल इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। काफ़ी हद तक बेहतर है, अच्छा है, और माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह। और ज़ाहिर है किताबें यहाँ छपती हैं। अब मैं बात करता हूँ अपनी। मैं बेसिकली कॉलमिस्ट हूँ, और जंग, एक्सप्रेस, नवाए वक्त और कराची के जो लीडिंग अखबारात हैं उनमें 30-35 साल तक मैंने कॉलम्स लिखे हैं। और मेरा जो बुनियादी शोबा है वो नस्र है। अच्छा, नस्र लिखता हूँ। और ये मेरी दोहों की पहली किताब है। वैसे तो मेरी 4-5 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन ये मेरी दोहों की किताब है। और दोहा जो है वो हिंदी सिंध पे सुखन है। अच्छा जी। पाकिस्तान में जो दोहा कहा जा रहा है वो उर्दू में है। कोई शाज़ व नादिर कोई होंगे जिन्होंने, मेरे ख्याल में 2-4 लोग हैं, उनमें शायद एक मैं भी हूँ, जिन्होंने हिंदी में मुकम्मल उसकी गर्दान के साथ, जो उसकी असल सेहत के साथ दुआ कहा है। अच्छा, वो किताब भी है हिंदी वाली आपकी कोई? जी, मेरी किताबें हैं हिंदी में जो लिखी गई। ये हिंदी में दुआ हैं। अच्छा, ये असल दुआ है। वैसे तो उर्दू में दुआ कहा जा रहा है, अली साहब ने भी कहा है, लेकिन उर्दू के दोहे को वो मकबूलियत हासिल नहीं। मैं आपको अपना एक दोहा सुना देता हूँ। पहने मन का कोढ़िया इत्र लगी पोशाक, पहने मन का कोढ़िया इत्र लगी पोशाक, जाए न तन का कोढ़पन लीर भी होना पाक। तो ये हिंदी से हिंदुस्तान। अच्छा, ये एक अश्लोक होता है, एक दोड़ा होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपने जो बोला मुझे अश्लोक सा लगा, ये फ़र्क क्या है? अश्लोक और दोहा तकरीबन एक ही औज़ान पर होता है। अच्छा जी। और तकरीबन एक ही गर्दान होती है उसकी। फैलुन फैलुन फाइलुन फैलुन फैलुन फा के वजन पे होता है। आपने गिला किया लाहौरियों का? नहीं, गिला नहीं किया। अच्छा जी। मैंने कहा कि लाहौर हब है किताबें छापने का, लेकिन कारी कराची में। बहुत शुक्रिया। हम इस पे स्टैंड लिए हुए हैं और हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाजिया कामरान और मैं हूँ एक साइंस फिक्शन राइटर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सारे लोगों का जिन्होंने ये फेस्टिवल पसंद किया। इस तरह के फेस्टिवल लगते रहने चाहिए, लेकिन मैं जिंदा दिलाने लाहौर को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगले फेस्टिवल को आपने इससे भी ज़्यादा कामयाब बनाना है। इस दफ़ा रश थोड़ा कम था, लेकिन किताबों से मोहब्बत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये मैं किसी से भी ना सुनूँ कि किताबों की आखिरी सदी है, बल्कि हमें ये साबित करना है कि किताबों की ही सदी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से ही आई। लाहौर से ही। और मेरा नाम सैयद इरफान अली यूसुफ है। मैं बचपन ही से बच्चों के लिए मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने अखबारात की मुलाजमत की, तहसीली इदारों की, और उसके बाद लिखना पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। जब मैं BA कर रहा था उस ज़माने से मैंने किताबों का तर्जुमा शुरू किया, और अब तक मेरी तकरीबन 50 से ज़्यादा किताबें तर्जुमा हो चुकी हैं। जो महमूद शाम का जो पर्चा अतराफ़, उसमें वो किस्तों में शाये होती रही है। उन्हीं में से 2 किताबें अभी हमने यहाँ पर छापी है। वो कौन सी? क्या नाम क्या उनका? एक तो व्लादिमीर ब्यूटन है, और दूसरी किताब इर्नेस्ट हेमिंग्वे की सवालें हैं। अच्छा, 2 किताबें ये। इसके अलावा बच्चों का नावल जो अभी हाल ताज़ा छपा है, वो भी यहाँ स्टॉल पर रखा गया है। नीले पहाड़ों पर के राज। जी जी। ये बच्चों के लिए लिखा गया। जी ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं बहुत लंबे अरसे से लिखता रहा हूँ। तकरीबन मैंने गुज़श्ता अरसे में कोई 20 के करीब बच्चों के नावल लिखे हैं, और इसके अलावा बच्चों के एक साइंसी रिसाले का भी एडिटर है। अच्छा जी। वो है साइंस बच्चों के लिए, जो अब बंद हो चुका है, लेकिन इससे पहले वो तकरीबन 20 साल तक वो निकला है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे स्टॉल पर जितनी भी किताबें लगी हैं तकरीबन सारी 50% पर हम किताबें दे रहे हैं। तो लेकिन आवाम का रुझान इस कदर कम है। अच्छा, खरीदने वाले जो है ना बहुत कम है पिछले साल की निस्बत। इस साल शायद महंगाई की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं, या क्या है वजह। बाकी ये 5 दिन का भी हो गया ना, पहले तो 3 दिन का होता था। नहीं, 4 दिन का पिछले साल लगा है सिर्फ। कोई टाइम पीरियड को किसी वजह से वो साल नहीं मिल सका। अच्छा। लेकिन बाकी तो तमाम जितने साल भी हैं वो 5 दिन का ही लगता है। अच्छा, कई स्टॉलों पर तो बहुत ज़्यादा रश है जी। लेकिन रश, असल में रश हम उसको कहते हैं कि गुजरने की भी जगह ना हो, लोग आ जा रहे हो, पूछ रहे हो। यहाँ तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कितनी देर कस्टमर भी नहीं आता। अच्छा। ऐसा भी मुमकिन होता है।
आधा आधा घंटा बाद दफ़ा हम लोग तो फाड़े फिर बैठे तो आप अपनी किताबों के बारे में सोचे में उनमें कोई ऐसा मेयार है या क्या मसला है कि लोग किताबें तो यही शुरू से अज़ल से बिक रही हैं, वही किताबें हैं। ऐसा तो नहीं है कि किताबें को पहली दफ़ा कोई नई आ रही हैं, छप रही हैं, किताबें तो वही हैं जो। अच्छा, अपनी बुक साल का नाम और अपना नाम? लाहौर बुक सिटी है, लाहौर बुक सिटी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये फूल को पेश किए हैं, किन को पेश किए हैं, क्यों पेश किए हैं, और अपना थोड़ा तारफ़ करवा के बात कीजिए। मेरा नाम नित्य पचरम है और मैं फूल वैसे देती हूँ लोगों को ना। मैंने कहा फूल मैंने नहीं इसलिए पेश किए, ये राइटर हैं और ये कराची से आए हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? निग्गत अकरम। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये फूल को पेश किए हैं, किन को पेश किए हैं, क्यों पेश किए हैं, और अपना थोड़ा तारफ़ करवा के बात कीजिए। मेरा नाम नित्य पचरम है और मैं फूल वैसे देती हूँ लोगों को ना। मैंने कहा फूल मैंने नहीं इसलिए पेश किए, ये राइटर हैं और ये कराची से आए हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? निग्गत अकरम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़हीम हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। बुक फेयर अच्छा है, काफ़ी साल के बाद होता है, हालांकि इसको मेरे ख्याल से एक साल में 2 दफ़ा होना चाहिए ताकि लोगों में शऊर पैदा हो दोबारा से कि बुक्स को देखेंगे तो बुक्स लेने की ख्वाहिश होगी, उसको पढ़ने का होगा। तो आपने अभी तक कौन कौन सी किताब खरीदी है? मैंने एक तो रजिस्टर ख़रीदा रजिस्टर। अच्छा। और एक प्रोग्रामिंग की बुक मैंने ली है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। और एक मैंने बुक ली है सेल्फ इसकी ली है बुक मैंने रीडिंग से, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। अच्छा। और एक मैंने ली है बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। अभी मैं आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और ऐसे होने चाहिए। नाम अपना नाम बताओ। हिना से। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, स्टूडेंट भी है, जॉब भी है। तो कैसा लगा आपको बुक फेयर? बहुत अच्छा है और जब भी होता है हम इधर आते हैं और यही ख्वाहिश है कि ये साल में कम से कम 2 दफ़ा होना चाहिए ताकि, और डिस्काउंट्स लगे होते हैं हर। अच्छा, कुछ लोगों की मुआशी हालत इतनी वो ख़राब हो गई है, उनके लिए रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो किताबें कैसे खरीदेंगे? आपने तो कह दिया कि साल में 2 दफ़ा लगा कर स्टॉल। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर स्टॉल पे तकरीबन डिस्काउंट है। अच्छा जी। अगर आप शॉप पे जाएंगे आपको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस में कर सकते हैं। मेरा नाम जावेद तैमूरी है और मैं इसका इंतज़ार करता रहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क से सिर्फ इसके लिए गया और मुझे जो किताबें चाहिए थी वो मुझे मिल गई। थैंक यू। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के? लाहौर के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का। अच्छा, कौन सी किताब आपने खरीदी? मोहम्मद यूएस का तर्जमा। अच्छा जी। अच्छा, आपको इतना इसका शौक है कि न्यूयॉर्क से आप मैं स्पेशल फरवरी में ही आता हूँ जब ये एक्सपो सेंटर में। तो कैसा आपका रुझान लगा बुक रीडिंग का? तो मैं बचपन से पढ़ता हूँ, तो मेरे पास वहाँ भी 2000 के करीब किताबें हैं, यहाँ भी हैं। किताबों में ही मैं खुश रहता हूँ। अच्छा। पढ़ूँ या ना, कई दफ़ा मैं कोई किताब नहीं भी पढ़ता लेकिन मुझे किताबें पसंद है। अच्छा, तो ना सिर्फ इस शक्ल में, ई बुक की शक्ल में। अच्छा, तो कैसा लगा आपको रुझान यहाँ पे किताब? मुझे अच्छा है, लोग आ रहे हैं। एटलीस्ट किताबें, लोग कहते हैं कि यहाँ किताबों का पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो अभी तो मुझे लग रहा है कि आने जिस तरीके से खरीदारी हो रही है ऐसे तो बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट कुछ लोग ले नहीं रहे, आए तो हैं। हाँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि किताबें लें। मेरा नाम डॉक्टर साहिद डोगर है, ये हमारा स्टार डोगर के नाम से है और डोगर प्रोफेसर्स, तो इस वजह से इस पर थोड़ा खराज है कि यहाँ एक तो स्टेशनरी भी हमने रखी हुई है और दूसरा यहाँ के मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, ख़ास तौर पे एंट्री टाइप। तो एंट्री की बुक्स के लिए जो है ना वो स्कोप रहता है। तो बाकी बुक्स में जो लोग इंटरनेट वगैरह से ले लेते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, तो हर किस्म के एंट्री टेस्ट, इस वजह से जो है ना वो ख़ास। अच्छा, कुछ आप रियायत भी करते हैं? हाँ, इस पर राइट। अच्छा, कितनी तकरीबन हमारी या बुक टू बुक है ये? उस पर जो हमारी अपनी बुक्स है यहाँ पे 40% का। अच्छा, ठीक है। आपका तो माशाल्लाह अदारा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी पब्लिशिंग है। अल्लाह का करम है, शुरू से ही हमारा 48-49 से है। अल्लाह का करम है और इसके अलावा नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। अच्छा, तो आपके कौन कोई फादर थे इसमें या? हमारे वालिद साहब थे, उसके बाद फिर हम भाइयों ने ये शुरू किया। तो एक डोगर ब्रदर्स वाले हैं, तो एक डोगर प्रोफेसर्स हैं जी। बहुत लेकिन आपस में हमारा ताउन है जी। ठीक, बहुत
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं ताज कंपनी में तकरीबन 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो हर साल यहाँ पर एग्जीबिशन में हम आते हैं, स्टॉल लगाते हैं। तो यहाँ पर लोगों का जो है वो रुझान दूसरी किताबों के साथ साथ कुरान पाक का भी होता है। पहले जो 2 दिन होते हैं उसमें थोड़ा सा कम होता है, जैसे ही फ्राइडे, सैटरडे और संडे वीकेंड डेज आते हैं तब लोगों का रुझान ज़्यादा होता है और वो अपनी खरीदो फरोख्त के साथ कुरान पाक भी लेने के लिए हमारे पास आते हैं। हम यहाँ पर जब स्टॉल लगाते हैं तो उसमें जो है वो मार्केट की निस्बत यहाँ पर एक्सपो सेंटर के अंदर हमारा डिस्काउंट पैकेज होता है, जिसके साथ हम कुरान पाक लोगों को हदियतन देते हैं। वो उसका हदिया में पे करते हैं तो उसके साथ हम देते हैं। वैसे आम जो है वो 10% रेगुलर चलता है आम कस्टमर्स के लिए। यहाँ पर हम तकरीबन 25% देते हैं डिस्काउंट। अच्छा, आपकी हर कोई जिसकी रेंज हो ना हो लेकिन वो कुरान पाक ज़रूर लेकर जाए। और ताज कंपनी का एक नाम है, एक ब्रांड है, उसके मुताबिक उसके पास जो पेपर क्वालिटी है उसकी वजह से कहीं पे रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेपर के आजकल जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ का डिस्काउंट स्पेशल रखते हैं ताकि हर कोई कुरान पाक जो है वो घर लेकर जा सके। अच्छा, ये आप पब्लिशिंग वाले जो हैं ताज कंपनी वाले, एक तो कुरान पाक छापते हैं, इसके अलावा कोई अहादीस की किताबें भी आप लोग छापते हैं? इसके अलावा हमारी दीनी बुक्स भी होती हैं, स्कूल बुक्स भी हम करते हैं। और जो कुरान पाक हैं वो तो हमारा बेसिकली प्रायोरिटी पे होता है कुरान पाक। इसके अलावा दीन में हमारे पास सही बुखारी शरीफ भी होती है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें होती हैं और अगर बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं। ये इसकी रेल बनती है नीचे स्टैंड रेल में, और ये कुरान पाक है 13 सतरी कुरान पाक है, इसके लिए शादी ब्याहों में गिफ्ट करनी। ठीक है। इसमें ये आ जाता है कुरान पाक, इसमें कैप है, अतर है और हाथ के लिए तस्बीह है। और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब के तर्जमे के साथ ये कुरान पाक है, इसकी भी रेल और ये सारी चीज़ें बनती हैं। जो ज़ियाल कुरान पब्लिकेशन है ये अहले सुन्नी जमात का है जी, और स्वाब में और इसके बाद ये कुरान पाक की सारी वैरायटी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये किताबें भी नज़र आ रही हैं जो सियासी किताबें हैं, तो क्या कुरान पाक के हवाले से जो आप लोग पब्लिश करते हैं आपको क्यों ज़रूरत महसूस होगी कि आप ये किताबें भी आप इस इदारे के ज़रिए सर ये छापें? जो ये सियासी किताबें ये हमारी नहीं है, ये सागर पब्लिशर है, ये एक अलहदा इदारा है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये उन्होंने भाई ने हमारे साथ स्टॉल लिया था, साथ अलहदा है, लेकिन हमारी जो है ना ये साथ वाली नहीं है, हमारा नहीं है, ज़ियाल कुरान सियासी छाप का नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत मकतबा खुदामुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बुक्स प्रिंट करता है। डॉक्टर साहब की ओवरऑल 100 के करीब बुक्स हैं छोटी बड़ी। इसमें डॉक्टर साहब की तफसीर भी है, बयानुल कुरान जो 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी 6000 रुपये कीमत है, 3000 रुपये का यहाँ खसूसी रहती कीमत में सेल करते हैं। तो ख़रीदारों का मुँह में रुझान क्या रहता है यहाँ पे? और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब को सोशल मीडिया पर लोग सुनते हैं, बुक्स के हवाले से भी डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा लोगों का। अच्छा, आप सिर्फ यही मकतबा छापता है डॉक्टर साहब किताबें, या आपने किसी और को भी ये हकूक़ दिए हुए हैं? इसमें एक पाक बुक वाले हैं, बुक फेयर वाले हैं, तो वो भी डॉक्टर साहब की कुछ किताबें प्रिंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मकतबा जो डॉक्टर साहब की सारी किताबें। अच्छा, इसके अलावा कोई CDs और कैसेट्स वो भी आप? USB मिल जाएगी डॉक्टर साहब की, इसके अंदर डॉक्टर साहब के वीडियो में खुतबात हैं। 32 GB की USB है और वो 1000 रुपये की, जिसमें 250 घंटे की वीडियो खुतबात है। और इसी तरह 16 GB में ऑडियो USB है, उसमें तकरीबन कोई 750 घंटे के ऑडियो लेक्चर हो सकते हैं। अच्छा, अब आपका नाम क्या है? उमर फारूक। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अल्ताफ़ समरो है। सोमी बाबू के नाम से ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में मुझे जाना जाता है। पैगाम डाइजेस्ट बच्चों का एक रिसाला है, मैं उसका साबित मुदीर हूँ। 3 साल मैंने वहाँ पे इदारत की है और इसके अलावा आजकल मैं रेडियो से वाबस्ता हूँ, टेलीविज़न से वाबस्ता हूँ और पसी पर्दा सदाकार के तौर पर कई चैनल्स पर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, कौमी और बैनुल अक़वामी चैनल्स पर।
तो किताब बीनी के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी जिसमें काफ़ी बड़ी शख्सियात और जहांदीदा लोगों को बुलाया गया था। जब तक मोबाइल बच्चों के हाथ में है तो तब तक हम आने वाली जनरेशन को किताब की तरफ नहीं लेके आ सकते, और इसी वजह से किताब बीनी का रुझान कम होता जा रहा है। जो किताब से रिश्ता है, जो हाथ में आपके कागज़ होता है और किताब होती है, एक मुजल्लद किताब, उसका रिश्ता, उसका एहसास और उसका लम्स कुछ और होता है। जो डिजिटल बुक होती है जिसे आप PDF कहते हैं या किसी भी और शक्ल में मौजूद होती है, उसके साथ उस तरह का रिश्ता बन नहीं पाता। तो पहले घरों के अंदर बाकायदा एक अलमारी या थोड़ा सा जगह को मुख्तस किया जाता था जहाँ पे एक किताब खाना या लाइब्रेरी जिसे कहा जाता था। तो हमारे वक्तों में भी छोटे होते ऐसा होता था, पुराने रसायल, पुराने मैगज़ीन, किताबें इकट्ठी होती थी, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे तो कम से कम उनसे खेलते रहते थे और तस्वीरें देखते रहते थे, तो किताब से एक किस्म का रिश्ता बन जाता था। तो अब वो चीज़ें अनका हो गई हैं, गायब हो गई हैं। तो अगर कौम को तरक्की की राह पर लाना है और आने वाली जनरेशन को किताब से जोड़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स कम अज़ कम 10वीं क्लास या 9वीं क्लास तक उनसे छीन लिए जाएँ और किताब की तरफ। बहुत शुक्रिया। मेरी किताब जो है ना अभी हाल ही आई है, तो मेरी कोशिश अब ज़्यादा ये होती है कि मैं ऑनलाइन जो है ना उसे सेल, क्योंकि अब किताब जो बेचने का तरीकाकार है ना वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता जा रहा है। कि अगर आप कहें जी मैं किसी पब्लिशर के पास लिखवा दूँ, मेरी जो पहली किताबें आई थी वो पब्लिशर ने ही शाया की थी और उन्होंने वहीं सेल की थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना इदारा एक बना लिया और अब मैं अपनी किताबें खुद जो है वो पब्लिश कर रहा हूँ और खुद ही उसे जो है वो मैं सेल करता हूँ। तो ज़्यादातर ऑनलाइन जो है वो मैं अच्छा, सेल कर रहा हूँ। बुक फेयर में आपने क्या रुझान देखा लोगों का? बुक फेयर में मैंने देखा है कि अभी 2-3 स्टॉल मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर आप लिखते अच्छा है, अगर उसका मवाद अच्छा है किताब का, तो अभी भी लोग जो है वो ख़रीदने वाले यहाँ पर जो किताब के शौकीन लोग हैं वो अभी भी हैं और किताब पढ़ने वाले अभी भी मौजूद हैं, लेकिन किताब के अंदर कुछ मवाद जो है वो बेहतर होना चाहिए। डॉक्टर तनवीर सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आज का दिन गुजरना जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, कुसुम तेरा बिखर ना जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ, आरज़ू है कि तू यहाँ और भर ना जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रहेगा ये भूलना जाए कहीं। बुक फेयर में बेशुमार स्टॉल लगे हुए हैं। ये जैसे ही यहाँ पे आउट होने वाला रास्ता है, वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं। जितने बाकी स्टॉल हैं वो कुछ ना कुछ शाम को कमा कर घर ले जाएंगे। ये कमा कर क्या शाम को घर ले जाएंगे, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आता है उसको पानी की ये बोतल उसके हाथ में थमा देते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ के विजिटर्स हैं ये उनके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कोई 800 से ज़ायद लोग जो है वो यहाँ से फ्री पानी की बोतलें लेकर जा रहे हैं। तो एक तो ये वो गर्मी जो है वो भी आपके सामने है, मौसम बदल रहा है, लोगों को प्यास लगती है तो फ्री पानी है। दूसरा ये कि अल-खिदमत फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जमात इस्लामी वाली अल-खिदमत है ना? बहुत बहुत शुक्रिया।